Assalamu alaikum, dear students. Welcome to this session of video lectures. Today, in this video lecture, we have taken a chapter from Organic Chemistry, lesson number 12, some basic principles and techniques. Our topic is basics of organic chemistry. First of all, let's divide chemistry into three parts. As you know, physical chemistry. In physical chemistry, we study laws and applications and physical phenomenon. In inorganic chemistry, we study periodic table, we study elements and their properties. As far as organic chemistry is concerned, which is our main concern, in organic chemistry, we study organic compounds. First of all, let's move towards the history of organic compounds. What was the old perception about organic compounds and inorganic compounds? Organic compounds, those compounds obtained directly or indirectly from living things such as plants and animals were called organic compounds. That means those compounds which were directly or indirectly obtained from living things such as plants and animals. Let me give you some examples of organic compounds. We have sugar, we have oil, we have protein, etc. That means these are the products from plants or animals. About or inorganic chemistry, it was compounds obtained from non-living sources were named as inorganic compounds. Then we had Berzelius hypothesis. What Berzelius hypothesis is? Nature's mysterious forces which operates on plants and animals and they produce organic compounds. That means this is because of these mysterious forces we had these organic compounds. Dear students, I would like to mention this point that Berzelius hypothesis gave us 2 points. In one point, he mentioned that nature's mysterious forces which operates on plants and animals and they produce organic compounds. In second point, he says, dear students, in second point, he says, since these forces cannot be made artificially, therefore organic compounds cannot be made artificially. According to Berzelius hypothesis, he says that these forces which he named as mysterious forces, they cannot be made artificially. Hence, organic compounds cannot be made artificially. लेकिन इस जो दूसरा स्टेटमेंट उसने बोला वो बिल्कुल गलत बोला. इसको साबित किया वॉलर सिंथेसिस ने. उसने क्या किया, उसने एक कंपाउंड लिया जिसका नाम है अमोनियम साइनेट, उसी से बनाया उसने यूरिया. सो यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड सिंथेटिकली. यूरिया वाज द फर्स्ट कंपाउंड प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय वॉलर्स सिंथेसिस. कहाँ से बनाया उसने? अमोनियम साइनेट से बनाया. सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेटिकली, यू विल आंसर दैट इट वाज वॉलर. सो वॉलर सिंथेसिस में अमोनियम साइनेट को बनाया गया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड. यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड सिंथेटिकली. इसकी वजह से बिकॉज ऑफ वॉलर सिंथेसिस उसने दूसरा पॉइंट जो बेर्जेलियस हाइपोथेसिस में दिया गया था वो गलत साबित कर दिया. चलिए इसके बाद मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं, जहां हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं कोल्बीज प्रोसेस. इन 1845 सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय कोल्बीज showed that organic compounds could be synthesized from inorganic sources in the laboratory using carbon, hydrogen and oxygen. So Kolbe's synthesis की बात करते हैं, कोल्बेज प्रोसेस की बात करते हैं. क्या किया उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड. उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उससे बना दिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट्स कॉल्ड एज एसिटिक एसिड CH3COOH. डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से बन जाती है एक फाइनल डेफिनेशन अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. द कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स which have carbon and hydrogen as main elements and sometimes can be along with nitrogen, sulfur, oxygen and halogens. Halogens में आते हैं क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन. दैट मीन्स इस डेफिनेशन के मुताबिक जो कि फाइनल डेफिनेशन है, हालांकि इसमें भी कभी कभी कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, लेकिन ये फाइनल डेफिनेशन है. ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन विल बी एज मैन
elements, and sometimes there can be some elements like नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड हेलोजन्स। यानी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और कार्बन मेन कंपाउंड्स के तौर पर मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, लेकिन कभी कभी आपको नाइट्रोजन भी देखने को मिलेगा, सल्फर भी देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन भी देखने को मिलेगा और हेलोजन्स को भी देखने को मिलेगा। तो इसमें कभी कभी आपको कन्फ्यूजन आ सकता है, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आगे आपको और एक डेफिनेशन मिलेगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वायर एज CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। वाई? ये यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, तो इसका आंसर यहाँ पे ही आपको मिलेगा। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड डिराइव नहीं होते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से। जहाँ तक कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात है, ये तो इसकी डिराइवेशन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन बी मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मीथेन हमने लिया हुआ है, मीथेन से 4 हाइड्रोजन एटम निकलते हैं, वहाँ पे क्लोरीन 4 क्लोरीन एटम वहाँ पे आते हैं, इसको कहते हैं क्लोरिनेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरिनेशन। यहाँ पे बन जाता है कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम डिस्प्लेस हो जाते हैं, वहाँ पे क्लोरीन एटम्स आ जाते हैं। हेयर इज द प्रोडक्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड और यहाँ पे HCl भी बनता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरिनेशन। तो आपको यहाँ पे इसका जवाब मिलता है कार्बन टेट्राक्लोराइड क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात आती है, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।